بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، استخارہ پروگرام میں براہ راست کالز کے ذریعے آپ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کے مسائل، آپ کی پرابلمز پروگرام میں ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بتاتے ہیں اور قرآنی آیات بتاتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ آپ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، خطوط کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کے مسائل ہم اپنے اسکالرس کے ساتھ جب ذکر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ چیز بھی خیال رکھیے گا کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا جو نام ہے وہ لکھنا میسیج پہ یا خط پہ وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا آپ کا پیغام اپنے اسکالر تک پہنچا سکیں۔ لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پہ ڈسپلے ہے، نمبر نوٹ کیجئے، کال کیجئے اور پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ آج استخارہ پروگرام میں ہماری جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہے، ممتاز علمی اور روحانی شخصیت ہیں علامہ پیر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ پیر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں اور ساتھ میں بہت بڑے حکیم، نشاہی دواخانہ بھی ان کا ہے، جسمانی روحانی امراض کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور علمی جو نکتے ہیں وہ بھی حل فرماتے ہیں اور دارالافتاء الحمدللہ جامعہ نعیمیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، پہلا سوال جو کل ہم تک جو سوال پہنچے تھے کچھ کے جوابات رہ گئے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے سمیرہ نام ہے لڑکی کا اور والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی اور اس کی چھوٹی بہن ہے، اس کا نام ہے رضیہ سلطانہ، والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی۔ ان کے رشتے آتے ہیں اور بات نہیں بنتی، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، جو جواب آتا ہے تو وہ نو میں آتا ہے یا آتا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب، آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت یہ سلامت رکھے ہمیشہ، آپ ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ہمارے ساتھ جو پروگرام ہم اس طرح کرتے رہیں۔ آپ نے جو دو بیٹیوں کا مسئلہ بیان فرمایا، مالک سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو ان بہنوں دونوں سے گزارش یہ ہے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 21 دن انہوں نے عمل کرنا ہے، سورہ مریم پڑھنی ہے 2 دفعہ دن میں، 2 دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ مریم، اور اس کے بعد رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں گے تو اس کے بعد انہوں نے 303 دفعہ یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا ودود، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا ودود 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 دن یہ وظیفہ کریں۔ دوبارہ بتائیں انشاءاللہ الرحمن، مالک اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رشتہ آئے گا تو پھر یہ مشورہ کریں ہم سے کہ جو ہے نا وہ رشتہ کیسا رہے گا ان کے لیے، تو اللہ کرے پھر رشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب دونوں بہنیں پڑھیں یا ایک صبح پڑھ لیں ایک رات میں پڑھ لیں؟ دونوں بہنیں پڑھیں، دونوں الگ الگ، جو الگ الگ پڑھیں، ایک گھر میں 4 دفعہ سورہ مریم پڑھی، 4 دفعہ پڑھی، سمیرہ اور رضیہ بہن جو ہے دونوں الگ دونوں پڑھیں۔ نماز کی پابندی کا خیال رکھیں، کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ان کی والدہ سے گزارش ہے وہ بھی نکلی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، مالک ان بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ بہت خوب مفتی صاحب قبلہ نے آپ کو میری بہن جواب دیا ہے اور انشاءاللہ دونوں بہنوں کی جو شادیوں کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، حل ہو جائیں گے۔ آپ سورہ مریم اور جو وظائف بتائے گے وہ آپ کیجئے، اس کا آغاز کریں، اللہ کا نام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے گی اور یہ کرم نوازی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، ارہا نام ہے بیٹی کا اور ماں کا نام ہے زنیرہ، 2.5 ماہ اس کی عمر ہے، روتی بہت ہے اور اس کے لیے بھی آپ بتائیے گا کہ وہ کیا اس کو پڑھنا چاہیے کہ وہ بیٹی رونا کم کر دے۔ تو ساتھ میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جو دودھ ہے مدر فیڈ کے ساتھ یا ویسے جو پلایا جاتا ہے وہ وومٹ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بچی کا نا میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ عمر بہت تھوڑی ہے، موسم بڑا عجیب سا ہے، اس میں اگر چیسٹ بلاک ہو جائے، بچی کی ریشہ پیدا ہو جائے اس میں، تو پھر بچی کو سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے بچی روتی ہے۔ اسی طرح جب
فیڈر سے یا مدر فیڈ سے دودھ کھینچتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فیڈ لیتے ہوئے چونکہ اس کو زور لگانا پڑتا ہے تو اس کو پھر سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ پھر فیڈ نہیں کرتی. سب سے پہلے تو اس بچی کو چیک اپ کرایا جائے کہ اس کی واقعی اس کو زکام ہے اور اس کی جو ہے وہ آنتوں میں جو اس کی جو ہے وہ نالیوں میں، سانس کی نالیوں میں جو ہے وہ نزلہ جو ہے وہ بلغم تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کو نیبولائز کریں ساتھ، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ دم کر دیتے ہیں اس کو گھر والے جو ہے وہ اس کے والد یا والدہ 11 دفعہ سورہ جو ہے وہ کافرون اولا خدوشی پڑھ کے اس کو دم کر دیا کرے ڈیلی. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ وہ رونا چھوڑ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کے کرم سے اس کے فضل سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے ہمارا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، آپ کو گائیڈ لائن پراپر دینا، لیکن عمل آپ نے خود کرنا ہے اور عمل سے ہی بات بنتی ہے. آپ نے سوال پوچھا، یہاں سے جواب دیا گیا اور بات یہیں پہ رہ گئی تو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور عمل کا جب آپ آغاز کرتے ہیں تبھی آپ کے معاملات بہتری کی جانب بڑھتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے یہ معاملات بہتری کی جانب ضرور بڑھیں گے. بالکل ایک اور مفتی صاحب سوال ہے، کامن سوال ہے، کچھ بھی کالرز کی طرف سے آتا ہے، ویسے بھی ہے. اس دور میں ڈپریشن سے نکلنے کا کوئی آپ حل بتائیں تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تعلیم میں جو کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے انسان، پیسہ بھی سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ڈپریشن جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، وہ بڑھ رہا ہے. تو کیسے ڈپریشن سے ہم نجات حاصل کریں گے؟ یہ تمام ناظرین کے لیے. اور کچھ بہنوں نے جو کہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، 2 MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہیں. دیکھیں جی، یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس دور میں انسان کی مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی صحت کا، اپنے جسم کا، اپنی خوراک کا، اپنے جسم کو کتنا اسے آرام درکار ہے، اس کے ذہن کو، اس کے جسم کو کیا خوراک چاہیے، وہ درکار ہے جو اس کو چاہیے وہ میسر نہیں کر پاتا. سب آپ کا جواب پورا ہم تفصیل سے لیں گے. یہاں پہ ایک جو کہ بریک کی جانب ہم بڑھیں گے اور بریک سے قبل ایک کال کا سلسلہ بھی شامل کر کے ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام جاری و ساری رہے گا. پروگرام میں کال بھی ہے اور بریک بھی ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ پاک کے کرم نوازی اور مالک کا جو احسان ہے وہ ہم سب پہ ہوتا ہے، انسان ہی ہے. اور ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد. کال بھی بعد میں لیں گے، جواب بھی بعد میں لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے مسائل، آپ کی پرابلمز، آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہم قبلہ علامہ پیر مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب تک پہنچا رہے ہیں. اور وہ آپ کو جو وظائف بتا رہے ہیں، ان وظائف پہ عمل آپ نے کرنا ہے، ان کو پڑھنا آپ نے ہے. پہلے فرائض کی پابندی، پھر اس کے بعد وظائف کرنا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وظائف کرتے جائیں اور آپ وظائف کرتے جائیں اور فرائض چھوڑتے چلے جائیں. پہلے اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہم پہ جو فرائض ہیں وہ ادا کیجیے. اس کے بعد جب آپ وظائف کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اسماء الحسنہ کی روشنی میں اللہ رب العزت کے پاکیزہ اسم مبارک کی آپ ورد کریں گے، تو یقیناً آپ کو اس کی تاثیر بھی ملے گی، آپ کو برکات بھی نصیب ہوں گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کلام ایسا ہے اور قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یہ کلام میں شفا ہے، درد سے انسان کو دوا بھی ملتی ہے اور بزرگوں کی دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. کالرز کا سلسلہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہے جمیلہ. جمیلہ جی، بتائیے بہن. جی میری اولاد نہیں ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، اس کے لیے میں نے کروانا تھا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. آپ لوگوں نے ٹیسٹ کروائے دونوں وائف اینڈ ہسبینڈ میں؟ جی ٹیسٹ کروائے ہیں ہمارے پاس، دونوں کی رپورٹ نارمل ہے. دونوں کی رپورٹس نارمل ہے. اچھا، آپ کی مدر نیم کیا ہے؟ مطلب انور کی. آپ کے شوہر کا نام؟ بکار احمد. ان کی والدہ کا؟ پروین. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر
30 साल। कितनी? 30 साल। 30 साल। शादी को 6 साल हुए हैं? जी जी। ओके, ठीक है। चलें आपको बताते हैं जमीला बहन, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आपको औलाद की नेमत अता फरमाए। जी किबला फरमाइएगा, 30 साल एज है, 6 साल शादी को चुके हैं। रिपोर्ट्स भी मैंने पूछा, कहते नॉर्मल है। अल्लाह ताला बहन की गोद हरी करे मालिक। सब बहनों बेटियों जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। रामा साहब, इनके जो सवाल है उससे जो मालूम हो रहा है सिर्फ ताख़ीर है, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। थोड़ी डिले फैक्टर है, थोड़ी ताख़ीर है, मुमकिन है शादी के 7वें साल अल्लाह ताला इनका करम करवा दे। तो वजीफ़ा एक बताते हैं इनको, दोनों मियाँ बीवी पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें जैसे कि हम सबको बताते हैं, बावज़ू रहा करें, और सूरह मरियम दोनों मियाँ बीवी रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ लिया करें, सुबह के टाइम फजर की नमाज़ के बाद, और रात को इशा की नमाज़ के बाद दोनों इकट्ठे जो है वो बैठकर 3 तस्बीह जो है वो या अल्लाह या अव्वलु या वारिसु, या अल्लाह या अव्वलु या वारिसु, इसकी 3 तस्बीह निकाला करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला करम फरमाएगा, आपको ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाएगा। आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, आपकी नसीब में इंशाअल्लाह औलाद है, थोड़ी देर है, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। शादी का 7वां साल आपके लिए खैर का और खुशखबरी का साल इंशाअल्लाह होगा, मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया। और वज़ाइफ कीजिए, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाएंगे और आपको औलाद की नेमत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन बताइए कौन सा, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैंने पूछना था कि मैं अपनी बेटी। हाँ वालेकुम सलाम जी। आप सब इस्तिखारा कराना चाह रही थी मुफ्ती साहब से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? कि मेरी बेटी है और उसकी शादी का कि वो कब तक उसकी होगी, तो हम लोग बड़े परेशान हैं। बेटी का नाम क्या है? जी बेटी का नाम अदीना है। अलीना। और आपका नाम? मेरा नाम उज़मा है। उज़मा, अलीना उज़मा। अच्छा, बड़ी प्यारी है लेकिन पता नहीं क्यों ताख़ीर हो रही है। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? जी उसकी 21 साल। कितनी? 21 साल। अच्छा अच्छा, चले तो जरा इस्तिखारा करके बताएं क्या मसला है। अल्लाह चले ठीक है, अल्लाह पाक करम फरमाए। बेटियां सबकी प्यारी होती हैं और वज़ाइफ आपको बताए जाएंगे। जी क़िबला फरमाए कि अभी एज 21 साल है मगर वालिदा परेशान है कि शादी हो जाए। जी बहन ने बताया बेटी प्यारी है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेटी से ज़्यादा प्यार उसके नसीब बनाए मालिक। आमीन आमीन। ठीक है, तो बहन गुजारिश ये है कि आप ख़ुद भी और बेटी से भी कहा करें कि नमाज जो है ना वो नहीं छोड़नी, नमाज की पाबंदी करनी है। और सूरह मरियम जो है ना आपने भी बेटी से कहना है वो रोज़ाना जो है वो पढ़ा करे एक दफ़ा। और इसके अलावा जो है वो कोशिश आप जारी रखें, रिश्ते इंशाल्लाह आएंगे। एक आप ख़त लिख दें एड्रेस पे, तो एक तावीज़ भेज देंगे, वो घर की दहलीज़ पे लटका दें, इंशाल्लाह रिश्ते आएंगे अल्लाह के फजल से। तो साथ जो है वो बेटी सुबह के फजर की नमाज़ के बाद जो है सूरह मरियम पढ़ा करे, और रात को इशा की नमाज़ के बाद जो है वो या अल्लाह या वकीलो या जामिओ या लतीफ़ो, सुभान अल्लाह, या अल्लाह या वकीलो या जामिओ या लतीफ़ो, इसकी 3 तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ करें। इंशाअल्लाह रहमान जल्द जो है अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। थोड़ी देर है, हो जाएगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। और ये खुशखबरी भी होती है और दुआ या कलिमात भी होते हैं, जब बुजुर्गों की दुआएं शामिल हो जाती हैं तो काम हो जाते हैं। और वज़ाइफ आप करें, फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह आपको बरक़ात नसीब होंगी और जल्द आपकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं मलिक काशिफ बात कर रहा हूँ जी। जी मलिक साहब बताइए। मेरे साथ ये पता नहीं कोई जल्द होने का कोई मसला है या क्या प्रॉब्लम है। मैं अक्सर घर से बाहर निकलता हूँ तो किसी न किसी परेशानी का शिकार हो जाता हूँ। मलिक साहब आपकी उम्र कितनी है? वो उसमें कामयाबी नहीं मुझे मिलती। बाहर निकल के अगर घर आता हूँ तो घर में भी ऐसे ही चल रहा है कि कोई मामला कामयाबी की तरफ नहीं आता। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है तकरीबन कोई 31 साल। बिजनेस क्या करते हैं आप या जॉब वगैरह? मैं काम करता हूँ स्पेयर पार्ट्स का। स्पेयर पार्ट्स, अच्छा। वालिदा का नाम क्या है? सुगरा बीबी। बिजनेस के मामले ठीक है आपके? बिजनेस मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें। और अल्लाह पाक खैर फरमाए, करम हो। घबराना, परेशान हो जाना और बिजनेस का भी ना चलना। और जी मामलात की तरफ है मलिक साहब, जनाब क़िबला क्या फरमाएंगे आप? फैसल भाई से गुजारिश है
یقیناً ہم آپ کے بارے میں استحضان رکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے. جی نماز کے علاوہ صبح گھر بھی اور جب اپنے بزنس کی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کا معمول بنائیں. چاہے روزانہ ایک صفحہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک پائیہ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے روز کے معمول میں ایک اضافہ آج سے جو ہے وہ کل سے شروع کر دیں. آپ صبح سے اللہ کا نام لے کے قرآن پاک کی تلاوت گھر میں بھی، اور جو ہے وہ جہاں پہ کاروبار ہے آپ کا، جو دکان ہے آپ کی، وہاں پر بھی. گھر سے نکلتے ہوئے صبح آپ نے جو ہے وہ چاروں کل جو ہے ایک دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اور آپ کو جب گھر آئیں گے تو گھر آتے ہی آپ نے السلام علیکم کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہ 3 عمل آپ کر لیں. انشاءاللہ گھر آئیں گے تو تب بھی خوشی ہوگی، گھر سے باہر جائیں گے تو تب بھی انشاءاللہ خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور کاروبار میں بھی برکتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. آمین. جی فیصل صاحب، آپ ملک صاحب کیجیے یہ عمل جو بتایا گیا علامہ قبلہ پیر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب سے. آپ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، ریحانہ. جی بتائیے ریحانہ. مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. جی پوچھیے آپ. ٹی وی کا والیوم پلیز کم کریں اور سوال کریں آپ. میرے نا ہسبینڈ ہے، ایک تو بیمار ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، 16 سال شادی کو ہو گیا ہے، تو بہت پریشان ہوں. ہسبینڈ کا نیم کیا ہے؟ آفتاب خان. جی کیا نام ہے؟ آفتاب خان. آصف خان. والدہ کا نام کیا ہے ان کی؟ آفتاب خان. آفتاب خان. اٹس اوکے. والدہ کا نام کیا ہے؟ زاہدہ. تو کام کیا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ کرتے ہیں کام؟ ڈیلیوری کرتے تھے، پھر مکینک کی دکان کی. اچھا پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے؟ جی ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے؟ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ان کا ہو پاتا ہے. ہیپاٹائٹس کے مریض بھی ہیں. بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بچے ہیں میرے. اچھا چلیں، اللہ پاک آپ کے لیے کرم فرمائے، خیر ہو، آسانیاں ہوں. ہم دعا کریں گے اور یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے. آفتاب خان صاحب جناب، کام نہیں مفتی صاحب چل رہا اور پریشانی بہت ہے. ظاہری بات ہے، کام نہیں چلے گا، پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو پھر صحت بھی خراب ہے. بتا رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں. وہ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی اس مرض سے ان کی جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. کچھ ظاہر ہے بیماری سے بھی انسان کے اندر وہ توانائی نہیں رہتی کام کرنے کی، تو کوشش جاری رکھیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ایک وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک تو ان کا جو ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ان کے لیے مشورہ ایک طبی بھی ساتھ میں عرض کرتا چلوں. عرق مکو اور عرق کاسنی، صبح نہار منہ عرق مکو، اور رات کو شام کھانے سے پہلے جو ہے وہ عرق کاسنی، یہ دونوں پہ 11 دفعہ دم کر کے نا صبح شام خالی پیٹ کھانے سے پہلے پیا کریں. اور کاروبار کے لیے جو وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ میرے بھائی سے گزارش یہ ہے کہ وہ خود جو ہے یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط 333 دفعہ اول آخر دوسری کے ساتھ وظیفہ کرے. انشاءاللہ بہت جلد مالک جو ہے رزق کے اسباب پیدا فرما دے گا. آمین. جی آمین. اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا سلسلہ ہوگا، رزق میں برکتیں ہوں گی. آپ وظیفہ کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور صحت بھی آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. جو مفتی صاحب نے طبی نسخہ بتایا اس پہ بھی آپ عمل کریں، آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں روبینہ بات کر رہی ہوں. جی روبینہ بہن بتائیے. بھائی میرے 2 پرابلم ہیں. جی بتائیں. میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی بتائیے. ایک تو میری بیٹی ہے، اس کے میاں کے ساتھ اس کے تعلقات اس طرح ہیں کہ وہ آدمی سخت بہت ہے اور اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اور اس کے لیے کچھ بتائیں کہ کیا پرابلم ہے اس کو. تو ابھی آپ کی کسی نے کچھ کیا ہے یا ابھی گھر میں کیا آپ کی بیٹی آپ نے. اور جی جی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک زمین جو ہے وہ بکنی ہے. جی. تو
क्या वो कब तक बिक जाएगी, कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। आप अपनी बेटी का नाम बताएं और अपने दामाद का नाम बताएं। बेटे के रिश्ते के लिए कुछ बता दे। पहले बेटी का नाम बताएं। बेटी का नाम नूरुल ऐन है। और उसके शोहर का नाम क्या है? उसके शोहर का नाम हारून है। तो बच्चे हैं इनके? जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अभी अपने शोहर के साथ ही रह रही है ना ये? जी जी उनके साथ ही रह रहे बस ये झगड़ा लड़ाई मामला चलते रहते हैं। तो वो मियाँ के साथ जो है वो उसको तंग करता है। तो चलें, अल्लाह पाक करम फरमाए और तंग करने का सिलसिला ख़त्म हो और अच्छे वक्त आगे बढ़े। मुझसे पहले तो मियाँ बीवी की बिटवीन जो रिलेशनशिप है इसमें प्यार और मोहब्बत के लिए, आफ्टर दैट जो ना इनकी जो एक प्रॉपर्टी है उसको सील करना है, उसके लिए क्या बताएं। मगर ये दोनों, बल्कि और भी 1-2 सवाल हैं जो खतूत के जरिए पहुंचा, 3-4 सवाल हैं, लेकिन पहले हम आपके ही दोनों सवालों के जवाब लेंगे। मगर हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, आप रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदेद नाजरीन, इस्तिखारा प्रोग्राम कोहिनूर टीवी पे आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आपके मसाइल का हल बताया जा रहा है। आपको पुरानी आयात बताई जा रही हैं पढ़ने के लिए, सूरतें बताई जा रही हैं, और अस्माउल हुस्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अस्मा हैं वो आपको पढ़ने के लिए बताए जा रहे हैं, जिससे आपके बिगड़े काम भी संवर जाएंगे और दुख आपका सुख में बदल जाएगा, और खैर और आफियत, रिस्क और इल्म और हिल्म के और आफियत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और कुरान पाक की इन आयात की बरकत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा की बरकत से। अब एक से कबल बहन ने जो 2 सवाल किए थे, एक तो सवाल नूरुल ऐन, उनकी बेटी का शोहर के साथ जो झगड़ा रहता है उसका मुफ्ती साहब हल बताएं। 3 बच्चे भी हैं, और सेकंड उनकी प्रॉपर्टी वो सेल करना चाहती हैं, सेल हो नहीं रही, उसके लिए भी कुछ बताएं पढ़ दें। पहले बात करते हैं जो उनकी बेटी, जिनका अपने खामद से जो है वो मामला थोड़े तनाव का शिकार है, ताल्लुकात में थोड़ी जो है वो सर्दमोहरी आई हुई है, तो उसके लिए उनसे गुजारिश ये है, पहली बात तो ये कि बेटी को थोड़ा समझाएं साथ कि बेटी भी अपने मिजाज में थोड़ी नरमी रखे। खामद की पसंद नापसंद का ख्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारी है। उसको चाहिए कि खामद की किन बातों से उसे बुरा लगता है उन बातों से अवॉइड करे। और दूसरा जो है वो वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताएं तो बेटी से गुजारिश है कि वो ख़ुद ये वजीफ़ा करे, या अल्लाह, या लतीफ़ु, या वदूदु, या जामिउ। ठीक है। या अल्लाह, या लतीफ़ु, या वदूदु, या जामिउ। इसकी एक तस्बीह अवल आखिर दूसरी के साथ जो है वो पढ़कर पानी पे दम करके या खाने वाली मीठी चीज़ पे दम करके अपने खाओं को खिला दिया करें। उनके मिजाज में इंशाअल्लाह नरमी आएगी ये, लेकिन अपने मिजाज में तब्दीली लाएँ थोड़ी साथ ना, उनके जो है वो ख्याल रखें पसंद नापसंद का। दूसरा जो घर की सेल के बारे में है, ये मेरी बहन जो ये खुद पढ़ लें या इनके खामद पढ़ लें, या अल्लाह, या मालिकु, या वारिसु। इसकी एक तस्बीह अवल खदरूशी के साथ जो है वो रोज़ाना कर लिया करें, और सूरह मुल्क की तिलावत एक बार रोज़ाना कर लिया करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असबाब जो है पैदा फरमा देगा मकान की सेल होने की इंशाअल्लाह प्रॉपर्टी। और बेटे के रिश्ते का भी कह रहे थे। बेटे के रिश्ते के लिए उस बेटे से कहें कि वो खुद जो है वो नमाज की पाबंदी करे एक तो, और एक जो है वो रोज़ाना सूरह मरियम एक दफ़ा पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा फरमा देगा। अल्लाह पाक की ज़ात इंशाअल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाएगी और आपके ये सारे काम हो जाएंगे। आपकी बेटी का जो झगड़ा रहता है अपने शोहर के साथ, शादी के बाद ये मसाइल होते हैं, मगर इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ की जानिब बढ़ना पड़ता है और कुछ सब्र और तहम्मुल से काम चलाना पड़ता है। और सब्र और तहम्मुल इंसान की शख्सियत का बहुत बड़ा हुस्न है कि जिसको हम अपनी शख्सियत में लेके आते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि गुस्सा कर लेना, बात का फौरी जवाब दे देना और लड़ाई कर लेना बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है। गुस्से को, झगड़े को कंट्रोल करना और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा चीज़ें हैं। बहादुर वो नहीं है जो बिछाड़ दे किसी को ना, बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाए ना, माफ कर दे जो। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मियावाली से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रियाज खान। जी खान साहब बताइए। मेरा बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद रेहान खान। रेहान खान? रेहान नहीं, रेहान खान। हाँ राज, ठीक है, बताइए। बाबू रेहान। हाँ जी जी। वो मोबाइल पे ये पबजी गेम है, हर वक्त ही खेलता रहता है। पबजी खेलते हैं? जी, पबजी गेम है ना मोबाइल। वो भी खत्म नहीं हुई? ये है अभी? नहीं, खत्म नहीं हुई। अच्छा जी। तो कितनी उम्र है उसकी? वजीफा बता दें, हर तरीका हमने उनके लिए इस्तेमाल किया है, प्यार से, मोहब्बत से। नमाज नहीं पढ़ता, रोटी की उसको फिक्र नहीं। उसकी एज कितनी है खान साहब? जी, उसकी उम्र कितनी है? उम्र साहब उसकी है तकरीबन 16 साढ़े 16 साल। 16 साढ़े 16 साल। उसकी वालदा का नाम क्या है? न्याज मर जाना। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। और बच्चों को गेम देखिए, सोशल मीडिया और फ़ोन जो है, सेल फ़ोन है, इसके अलावा टैब है, ये अब ज़िंदगी से गायब नहीं हो सकते, ये जा नहीं सकते। अब इनका इस्तेमाल है, बच्चों को एक प्रॉपर टाइम हो, थोड़ा आधा घंटा दें, उसके बाद आप ले लें, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। इन चीज़ों से अब हम पीछे नहीं जा सकते। अब इनके इस्तेमाल को, टाइम टेबल को सेट करना है। मगर 16 साल का लड़का पबजी के पीछे पड़ जाए तो मुफ्ती साहब मुश्किल तो होती है फिर। अलामा साहब, पीर साहब, मैंने जो इनका अंदाज़ा लगाया है उनके सवाल से और नाम से और सवाल के वक्त से, वो ये है कि बच्चे को उन्होंने लाड़ प्यार में खुद बिगाड़ लिया ज़्यादा पहले। अब उसको बिगड़े को राह रास्ते पे लाना ज़रा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। कोई भी मुफ्ती साहब गेम है ना, मैंने खुद एक तो गेम खेली तो दिल करता है बंदा खेलता जाए, आदत पड़ खुद ही पीछे निकलना पड़ता है, खुद ही जो है करना पड़ता है। अब वो उम्र उसकी ऐसी है, इस उम्र में तो इतनी समझ नहीं होती, अकल नहीं काम करती इस उम्र में ना। तो अच्छी तरबियत शुरू से ही पहले दिन से करनी चाहिए। बिल्कुल बुझा फरमाया आपने कि उन्हें टाइम फ्रेम है, थोड़ी देर के लिए खेलने दे, और इसके नुकसान बहुत हैं जी। हमने देखा, मेरे पास पेशेंट आए एक ऐसे, कोई मोबाइल का इस्तेमाल, उसकी नज़र चली गई जी। ऐसे ही मतलब बी काम का स्टूडेंट, 21 साल 22 साल का, उसकी आंखें जो है वो नबीना हो गया बेचारा मोबाइल इस्तेमाल करके। ऐसे और बड़े केस आ रहे हैं इसके साइड इफेक्ट जो है। तो वजीफ़ा ये है भाई के लिए कि ये जो है ना, वो बेटे को एक तो रोज़ाना एक तस्बीह अल्लाहु समद की पढ़कर अवला खद्दूर शरीफ के साथ उस पर दम कर दिया करें, या पानी में दम करके उसे पिला दिया करें। और एक दफ़ा रात को इशा की नमाज के बाद जो है वो एक तस्बीह जो है, या अल्लाह या हादियो या नाफियो, अवला खद्दूर शरीफ के साथ एक तस्बीह इसकी करके बेटे पे दम कर दिया करें, या किसी खाने वाली पीने वाली चीज़ पे दम करके उसको पिला दिया करें। साथ समझाएं ज़रूर, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, मतलब उसको नेक हिदायत अता फरमाए। आमीन। अल्लाहु समद की तस्बीह करके आप दम करें, और दम किया पानी उसको पिलाएं, जो मुफ्ती साहब ने वज़ाइफ बताया वो भी करें। हमारी दुआ भी है, आप समझाएं भी, और इंशाअल्लाह बच्चा समझ जाएगा और अच्छे मामलात की तरफ वापस लौट आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लतीफ़ बात कर रहा हूँ, आरीवाला। जी बताइए, आरीवाला से आपने कॉल की, साहब बताइए। कारोबार के बारे में कुछ अपने कोरोना तो नुकसान ही हो रहा है, नहीं रखता हूँ। आप किस किस्म का कारोबार करते हैं? उसके बाद भाई अब इसको आवाज से आपको समझ आ रही, तो मुझे बताइएगा क्या कारोबार था। नाम आपका क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद उमैर लतीफ नाम है जी। उमैर साहब। आपकी वालदा का नाम क्या है? जी रजिया दीदी। ठीक है, कारोबारी मसला है आपका है? हाँ जी ठीक है। कारोबार क्या था आपका, बताइए दोबारा, आपकी आवाज ठीक आ रही। शॉप, सीमेंट शॉप। सीमेंट की शॉप, अच्छा ठीक है। चल नहीं रही वो? नहीं, तो पता उसके बाद अब शुरू किया है के साथ ये कारपेंटर के मजदूरी लकड़ी वगैरह का काम होता है वो। चलें ठीक है, आपको बताते हैं, जवाब देते हैं। दिन ब दिन सीमेंट की बोरियां तो प्राइस उसकी बढ़ती चली जा रही है, और अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोले इंशाअल्लाह। हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, इसका जवाब देंगे। इस सवाल का ब्रेक के बाद रहेगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाजरीन, इस्तिखारा प्रोग्राम कोहिनूर टीवी पे आप देख रहे हैं। ब्रेक से कबल आरिफवाना से उमैर साहब की कॉल थी। मुफ्ती साहब बिजनेस है, और जिस बिजनेस की तरफ इशारा किया उस पर तो बड़ा बूम है, मगर इनका काम नहीं चल रहा।
क्या बताएंगे इनको, क्या स्ट्रेटजी भी अपनानी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि बरकत नसीब हो? सबसे पहले तो उमैर भाई से गुजारिश है कि दुकान पे पूरा टाइम दें, खुद बैठे दुकान पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो जो है ना वो दुकान पे आकर सुबह रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करें। सारे काम शुरू करने से पहले शटर खोल के दरवाज़ा खोल के पहले कुरान पाक की तिलावत करें, और उसके बाद जो है वो दुकान पे बैठ के ही हर नमाज के बाद एक तस्बीह वो या अल्लाह या वासियो या नाफियो या बासितो, या अल्लाह या वासियो या नाफियो या बासितो, ठीक है। इसकी एक तस्बीह हर नमाज के बाद बड़ा खदूशी के साथ किया करे। इंशाल्लाह देखेंगे उनके काम पे तो इस टाइम चल ही वही काम रहा है। इस टाइम बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो करूज है, इस टाइम गवर्नमेंट ने बड़ी सब्सिडी दी हुई है इसके लिए, तो ये मेहनत करें, कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, दुकान पे खुद टाइम दें और उधार देने से अवॉइड करें। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाए और मैनेजमेंट को बेहतर करें। ठीक है, मुफ्ती साहब ने खूब बात की है कि वक्त प्रॉपर दें, मैनेजमेंट अच्छी हो और स्ट्रेटजी अच्छी अपनाएं, साथ में डेली जब पहुंचे तो वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करें, फिर देखेंगे आपकी मामला बहुत अच्छी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बताइए, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अरफाना से बात कर रही हूँ भाई। तो मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है ना, बहुत काफी मुश्किलात है। क्या काम है मेरी बहन आपका जो चल नहीं रहा? जी, मेरा काम है कि मैं अमलियात और तवीज़ वास्तात वगैरह करती हूँ, ठीक है। मेरे बाप दादा का ये काम है मेरे पास। तो आपका अमलियात का काम नहीं चल रहा? जी जी। लोग नहीं आ रहे या आपके काम नहीं चल रहा, असर नहीं हो रहा? जी जी। नहीं, लोग भी नहीं आ रहे जी। लोग भी नहीं आ रहे, तो काम भी नहीं चल रहा, लोग भी नहीं आ रहे। जी, मैं नूरी करती हूँ, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करती। अच्छा, आप रूहानी काम करती हैं? जी। चले, अल्लाह पाक खैर फरमाए, आसानी हो आपके लिए। आपने कॉल की है, आपने बताया है, तो ये काम ऐसा है कि जिसका जितना मामला होता है, अगर कोई नहीं भी आएगा तो ये कौन सा कारोबार है कि कोई आया नहीं तो आप टेंशन में हैं। आपको वक्त मिला है, आप जितना वक्त मिले आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को की याद दिल में हो, फ़राइज़ पर अदा करें, वज़ाइफ करें, अपने आप को रूहानी जो एक तरक्की है उसकी तरफ लेकर। ये तो बहुत अच्छा होता है कि किसी के पास टाइम मिल जाए मुफ्ती साहब जी। हाँ, और अपने आप को रूहानी स्पिरिचुअल जो है ना बंदा तरक्की की तरफ बढ़ता है। मेरी इस बहन से गुजारिश ये है कि ये ना जो अपने आप को रूहानी तौर पे मुअस्सर बनाने के जो वज़ाइफ होते हैं या चिल्लायात होते हैं ना, पहले वो मुकम्मल करें, फिर जो है वो अमलियात पे बैठें, फिर मामला इंशाल्लाह बेहतर होंगे। क्योंकि आप जो है वो जब आपके पास रूहानी पेशेंट आते हैं, अगर आपके अपने मामलात जो है वो मजबूत ना हो, आपने अपने जो है वो चिल्लायात मजबूत ना किए हों, तो बाज़ कर इसकी जो है वो रिजत भी आती है, ठीक है, उस पे करने वाले पे भी, ठीक है। इसकी फिर इजाज़ात हैं और वो से भी लेनी चाहिए। जी हाँ, और शेख या आपका मुअल्लिम है कोई जो जिससे आप जिसकी निगरानी में कर रहे हैं जी, तो उनसे इजाज़त लें, उनसे जो है वो बाकायदा, ठीक है। और सबसे पहली बात इन सब बातों से पहली बात वो जो उन्होंने वैसे अपनी तरफ से तो कह तो दिया है कि मैं ऐसा नहीं करती, तो चीज़ें देखें, कुछ चीज़ों को मिक्स ना करें। रूहानी मामलात जो है वो रूहानी ही रहे, जो है वो दूसरे मामलात में जो है वो होता है। बाज़ का इल्म ना होने की वजह से इंसान बाज़ का वो दूसरे जो है वो मंत्र शंत्र भी पीछे पढ़ रहा होता है, तो फिर वो चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। ऐसा ना करें, किसी अच्छे जिनसे सीखा है, जिनको इजाज़त जिनको है उनके पास जाएं, बैठें, दोबारा चीज़ों को देखें ज़रा ना अपनी। ठीक, कॉलर शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी, मैं कोटला बिहार से बात कर रहा हूँ, अशरफ। जी जी, अशरफ साहब बताइए क्या मसला है आपका? जी सर, कैसा मेरा मसला है, मेरा कोई कारोबार जो कोई मसला आ रहा है ना, मैं बच्चा का कारोबार करना तो कोई मसला आ रहा है। किस चीज़ का कारोबार? क्या मसला आ रहा है, क्या कारोबार है आपका? जी, मच्छा का कारोबार करना, यानी कारोबार मज्जा है, भैंसों का कम करना। किसका? मच्छा का कारोबार करना। मच्छा का कारोबार, वो जिसे कहते हैं, एक टिपिकल नेम आ जाता है मेरे जेब में, व्यापारी जो होते हैं। जी जी। ओके, अच्छा, तो नहीं चल रहा आजकल? जी 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 बिल्कुल। उधार पे कितनी भैंसें ली हैं आपने? उधार पे, किस्तों पे? बिल्कुल, नाल पे एक नकद का कारोबार करना। नकद का करते हैं, किस्तों का करते हैं?
جی नकद का काम करते हैं या किस्तों का? नहीं कितने लगा था नकद। चलिए ठीक है, अल्लाह पाक आपके लिए करम फरमाए। आपको मुफ्ती साहब क़िबला बताएंगे पढ़ने के लिए, वो पढ़ें। और व्यापारी जो तरीक़ा है इसमें फिर मसाइल भी हो जाते हैं, चीज़ें स्टक भी हो जाती हैं, सेल भी हो जाती हैं। क्या फरमाएंगे क़िबला? मैंने इसलिए पूछा कि हमारी बरादरी से रिलेटेड चीज़ है ये, और हम सुबह शाम ये देखते हैं, इसलिए मैं पूछा किस्तों पे, क्योंकि किस्तों वाले मुफ्त से फंसते चले जा रहे हैं, नकद वाला फिर भी कुछ बेहतर है। जी, किस्तों पे ली आगे नकद शेयर कर दी ना, ये जोड़ तोड़ जो होते हैं, ये बंदे को ज़ाहिर है वो महंगी एक सस्ती बेची जाती है, तो फिर वो नुकसान फंस हो जाता जाता है, फंसता है, एक टाइम आता है इंसान वो फंस जाता है इस पे। तो भाई से एक गुजारिश है, सबसे पहले जो नमाज की पाबंदी करें। नमाज जो है उसको अपना 5 वक्त की नमाज जो है ना, ये आपने पाबंदी से पढ़नी है। और वजीफ़ा भी आपको हमने यही देना है कि हर नमाज के बाद आपने तस्बीह निकालनी करनी है। काम आपका अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। लेकिन जो है ना, नमाज की पाबंदी करें आप, ठीक है। और हर नमाज के बाद एक तस्बीह यानी कि 101 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ेंगे, या अल्लाह, या रज़ाकु, या बासितु, या नाफिउ, या अल्लाह, या रज़ाकु, या बासितु, या नाफिउ। 101 दफ़ा आप ये अल्लाह ताला के जो प्यारे नाम बताए हैं हमने, इनको आप याद करेंगे अल्लाह को इन नामों के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। लेकिन बात वही जो आपको अल्लामा साहब ने पहले कह दी कि एक तो उधार से जो है वो अवॉइड करना है, परहेज़ करना है, अपने उधार वाले काम में नहीं पड़ना, और दूसरा किसी को धोखा नहीं देना आपने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार में ये आवाज़ें लगवाया करते थे कि जिसको जो है वो ख़रीदो फरोख्त के मसाइल नहीं ना आते, हमारे बाज़ार में काम ना करे वो। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो खरीदो फरोख्त के जायज़ नाजायज़ के हलाल हराम के जो मसाइल हैं वो इंसान को कारोबार करने वाले बहुत बड़ी आपने बात की है। और इसका फुकदान, क्या फुकदान तो लफ्ज़ फिर भी बहुत अच्छा है, इसकी इतनी कमी है कि 99% लोगों को पता ही नहीं है। नहीं पता, मतलब एक हमारे आपने पढ़े लिखे आदमी, आपको अंदाज़ा है कि हमारे जो है वो अफ्रीका में एक टर्म चलती है ख्यारे रोयत या ख्यारे ऐब। खरीदार को जो है ये इजाज़त है कि वो 3 दिन के अंदर जो है वो उसको उसने कुछ इसमें ऐब देखा है या उसको पसंद चीज़ आई तो वापस कर दे। आप यहाँ चीज़ लेके जाएं, सही आप वापस आए तो फिर आपके वो जो आपने 1 लाख की ली है वो 90,000 की है। 90,000 के लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। हाँ, तैयार ही नहीं होते, तैयार ही कोई नहीं होता। उसके बाद जो है वो ज़्यादा कीमत हो जाती है। उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, रवैये कैसे हो जाते हैं 1 मिनट में। वो हमारे दुकानदारों के, आप दुकान बाजार में चले जाएं, आपको 2 मिनट दुकान में बैठ जाने के बाद आप वो चीज़ नहीं लेते दुकानदार से, कपड़ा या जूता जो भी लेने गए हैं आप, तो पहले जब गए उनकी जुबान पे फूल होते हैं, तो 5 मिनट बाद आप ना लें तो उनकी जुबान पे कांटे आ जाते हैं। निकलें जी, आप तो यहाँ घूमने आए हुए हैं, ख़वातीन से ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं ये, आप तो यहाँ पे आवारा घूमने आए हुए हैं, घर से फिरने आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। ताजिर की बड़ी शान है जी, और उस शान कायम रखनी चाहिए, शान कायम रखनी चाहिए। सच्चा ताजिर जो है क़यामत के दिन ये शुहदा के साथ होगा जी, लेकिन सच्चा ताजिर हो, झूठ ना बोले जो मामलात में, और किसी के साथ जो दगा जो है वो ना करे। तो ये बड़ा इज़्ज़त वाला काम है। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे। हम दुआ भी करते हैं आपके लिए, और वजीफ़ा बताया आपको, हर नमाज के बाद तस्बीह करें इंशाल्लाह। ये अमल आप 21 दिन करें, 21 दिन दोबारा कॉल करें इंशाल्लाह, तुरंत आपकी भैंसें सेल होंगी इंशाल्लाह। जी, भैंसें बिल्कुल सेल होंगी, और जो रेट है बढ़ते जा रहे हैं भैंसों के, अब तो 2.5 लाख 3 लाख तक बात पहुँच चुकी है। कहाँ 30-35 हज़ार की भैंस हुआ करती थी, मेरे दादा वो नाना वो जो लिया करते थे, अब तो वो 2.5-3 लाख 5 लाख तक भैंसें चली गई हैं। इसलिए मैंने पूछा कि ये चीज़ें मैंने बचपन में देखी हैं और अभी तक देख रहे हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए जी, बहुत अच्छा काम है, सबके लिए खैर हो। इस्तिखारा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम का पहुंचा। आपकी कॉल्स का एक तांता था, और भी खतूत के जरिए भी सवालात थे, जो भी आपकी कॉल्स तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखी हैं ताकि वो आगे पहुँचाएँ सवाल। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात का सिलसिला रहेगा जारी। क़िबला पीर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब हम सब के लिए दुआ फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम।